Okay, so today we will discuss about the chemical properties of metals and non-metals. So chemical properties, let us now study the chemical properties of metals and non-metals. So first one is reaction with oxygen. Metals react with oxygen to form metallic oxides. मेटल्स की जब रिएक्शन कराते हैं हम किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ. So it form metallic oxide like metal plus oxygen forms metallic oxides. Activity 7. Take a clean magnesium ribbon, hold it with the pair of tongs and burn it over a flame. हमें एक मैग्नीशियम रिबन लेना है और उसको होल्ड करके रखना है टोंग्स की हेल्प से. ओके, फ्लेम के ऊपर. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? मैग्नीशियम रिबन burns with a dazzling white flame to form a white ash. हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? जो मैग्नीशियम रिबन है वो व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न हो रहा है और लास्ट में क्या फॉर्म करता है? वो व्हाइट एश, व्हाइट कलर की राख प्रोड्यूस होती है लास्ट में. द व्हाइट एश formed is magnesium oxide. So the equation is magnesium plus oxygen form magnesium oxide, which is a metallic oxide. Can you complete the above equation? What about the nature of magnesium oxide? Is it acidic or basic? To test its nature, add little water to the ash in a test tube. अब हमें उसका नेचर बताना है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर. सो उसका नेचर टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना है? जो एश है, we take it in a test tube and add little water in it. Shake it well. Test the solution of magnesium oxide in water with a blue litmus paper and a red litmus paper. Okay. Then solution form होगा magnesium oxide का water के साथ. अब हमें उसे टेस्ट करना है ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर के साथ. You will find that the red litmus paper changes to blue. So indicate, however, the color of blue litmus paper remains unchanged. जो रेड लिटमस पेपर होता है वो ब्लू में चेंज हो गया, बट ब्लू लिटमस पेपर चेंज नहीं हुआ. Hence, magnesium oxide is basic in nature. Okay. So we conclude from this that all metallic oxides are basic in nature. Rust is also an oxide of iron. Rust means जो जंग लग जाता है आयरन में, वो भी क्या है? बेसिकली ऑक्साइड है. किसका? आयरन का. बिकॉज इट फॉर्म ड्यू टू द reaction of iron and oxygen. It is also basic in nature. Let us test whether rust is acidic or basic in nature. अब हम टेस्ट करते हैं कि जो रस्ट है वो एसिडिक है या बेसिक है नेचर में. Activity 8. Scrap little rust from a rusted iron article. कोई भी आयरन आर्टिकल है, लोहे का सामान है जिसमें जंग लग गया, उसमें से रस्ट को हमें स्क्रैप करना है, निकालना है थोड़ा. Place it in a test tube. Test tube में लेना है. Then add a little water to it. Shake it well. Then उसमें water add करके उसे अच्छे से shake करना है. Now test the solution of rust in water with a blue litmus paper and a red litmus paper. You will find that rust is basic in nature. उसके बाद हमें उस solution को टेस्ट करना है ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर. देन हम फाइंड करते हैं कि जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू में चेंज हो गया. दैट मीन्स इट इज बेसिक इन नेचर. तो मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. तो इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला है कि जो मेटल ऑक्साइड्स आते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर. लेट अस नाउ स्टडी द नेचर ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स. अब हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ेंगे. नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स. ओके, जब नॉन मेटल की रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, दे फॉर्म नॉन मेटालिक ऑक्साइड. द इक्वेशन इज नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन फॉर्म नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स. So we can understand this
topic through this activity. Activity 9, to be demonstrated by the teacher. Put a small amount of sulfur powder in a deflagrating spoon and heat it over a burner. हमें सल्फर पाउडर लेना है एक स्पून में और उसे बर्नर के ऊपर हीट करना है. You will find that sulfur will start melting quickly and catches fire. जब हम हीट करेंगे सल्फर पाउडर को हम देखेंगे कि वो इजीली मेल्ट हो जा रहा है और उसमें जल्दी से आग भी लग गई है. Plunge the spoon quickly into a gas jar and cover the jar. Then हमें क्या करना है, स्पून को क्विकली एक जार में रखना है जिससे कि उसमें से जो गैसेस निकल रहे हैं वो उसमें कवर हो जाए और जार को भी कवर कर देना है. Then this will not allow the gas produced to escape. इस वजह से क्या होगा, जो गैस प्रोड्यूस हो रही है सल्फर में से वो बाहर नहीं निकल पाएगी. Now remove the spoon after all the sulfur has burned. उसके बाद स्पून को निकालना है जब सारा सल्फर खत्म हो गया होगा, बर्न हो गया होगा, जल गया होगा. Add a little water into the gas jar and replace the lid. उसके बाद हमें गैस जार में थोड़ा सा पानी मिक्स करना है और उसके ऊपर से लिड को हटा देना है. Shake the gas jar so that the gas produced dissolves in water. Then उसके बाद गैस जार को अच्छे से शेक करना है so that the gas produced dissolve in water. जो गैस उसमें बनी है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाए, मिक्स हो जाए. Now remove the lid and pour a little of the solution. अब क्या करना है, लिड को रिमूव करना है, हटाना है और उसमें से थोड़ा सा सॉल्यूशन निकालना है. फॉर्म देना वॉच ग्लास पे टेस्टिंग के लिए. Now test the solution with blue and red litmus paper to find whether the solution is acidic or basic in nature. वॉच ग्लास में लेंगे जिससे कि हम टेस्ट कर सके कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है with the help of litmus paper. When sulfur is burnt in the presence of oxygen, the new substance formed is sulfur dioxide. जब हम सल्फर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं, ऑक्सीजन होता है जब उसमें जब जलाते हैं तो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड. On dissolving sulfur dioxide in water, another new substance called sulfurous acid is formed. और जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो एक और नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसे कहते हैं सल्फरस एसिड. दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, फर्स्ट हमने सल्फर लिया, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उसे बर्न किया तो हमें हमारा फॉर्म हुआ सल्फर डाइऑक्साइड. नेक्स्ट सल्फर डाइऑक्साइड को हमने वाटर में डिसॉल्व किया. सल्फर का फॉर्मूला है S, ऑक्सीजन का SO2. इट फॉर्म SO2, sulfur dioxide. Then we take sulfur dioxide and dissolve it in water. Water का फॉर्मूला होता है H2O. It form sulfurous acid, H2SO3. Sulfurous acid turns blue litmus paper red, indicating its acidic nature. तो जो सल्फरस एसिड है, जब हमने लिटमस पेपर से उसका टेस्ट किया तो जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में चेंज हो गया. इट मीन्स इट इज एसिडिक इन नेचर. So we conclude that non-metallic oxides are generally acidic in nature. Now phosphorus is a very reactive non-metal. phosphorus क्या एक बहुत ज्यादा reactive non-metal है. It catches fire when exposed to air. In order to avoid its contact with oxygen or water, it is stored in water. ये बहुत जल्दी फायर कैच कर लेता है. अगर हम इसे ऑक्सीजन में रखते हैं, बाहर एयर में रखेंगे तो इसमें बहुत जल्दी आग लग जाती है. सो डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो इसका एयर के साथ, इट इज स्टोर्ड इन वाटर, तो इसे पानी में रखा जाता है. नाउ रिएक्शन विद वाटर. Metals react with water to form either oxides or hydroxides and hydrogen gas. जब हम मेटल की रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ तो ये क्या फॉर्म करता है, ऑक्साइड्स,
हाइड्रोक्साइड्स या हाइड्रोजन गैस। ओके, लाइक मेटल प्लस वाटर फॉर्म मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है इसमें से। सोडियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल, it reacts violently with cold water and also oxygen. सोडियम एक बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, ये कोल्ड वाटर में बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन के साथ भी। A lot of heat is evolved when sodium reacts with water. जब सोडियम की रिएक्शन कराते हैं हम वाटर के साथ तो उस टाइम बहुत अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। इट कैन इवन रिएक्ट विद मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर वायलेंटली। इवन ये जो एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसके साथ भी रिएक्ट करता है। दिस इज द रीजन व्हाई सोडियम इज ऑलवेज केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन। इसीलिए ये इसका कारण है कि सोडियम एयर के साथ इतना रिएक्ट करता है, इसीलिए इसे केरोसिन ऑयल में रखते हैं। Now, let us now study the reaction of sodium with water. Activity 10. Cut a very small piece of sodium, roughly the size of a wheat grain. हमें सोडियम को कट करना है इतने स्मॉल पीस में, लाइक व्हीट ग्रेन, गेहूं का दाना जितना होता है। ड्राई इट विद द फिल्टर पेपर, उसे फिल्टर पेपर से सुखाना है। नाउ फिल अ बीकर विद वाटर एंड वेरी जेंटली प्लेस द पीस ऑफ सोडियम मेटल इन इट। उसके बाद हमें एक बीकर में पानी भरना है और उसके ऊपर आराम से सोडियम मेटल को रखना है। बी केयरफुल, द रिएक्शन इज वायलेंट। ध्यान से करना है क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा होती है, उसमें से गैस रिलीज होती है। Observe very carefully, you will find that sodium reacts violently with water. Does this solution appear clear? ये रिएक्शन बहुत तेजी से होता है। सो उसके बाद हमें देखना है कि जो सॉल्यूशन है वो पूरा क्लियर दिख रहा है, वो उसमें डिसॉल्व हो गया है या नहीं। I observe bubble of gas being formed when sodium reacted with water. तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उसमें से गैसेस बबल्स निकल रहे हैं गैसेस के फॉर्म में। द बबल्स प्रोड्यूस्ड आर ऑफ हाइड्रोजन गैस। जो बबल्स निकले बन रहे हैं वो किसके हैं? बेसिकली हाइड्रोजन गैस के। मोस्ट मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। सो मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होती है? कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। सोडियम react with water to form a clear solution of sodium hydroxide. Hydrogen gas is also produced. जब हम सोडियम की रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकलती है।